આગળ આપણે રેવા બાંબુ ફાર્મિંગ ના પ્લોટ ઉપર સૌ અહીંયા બિરાજમાન થયા છે. તો આપણે નામ જ એવું છે કે રેવા બાંબુ ફાર્મિંગ, તો બાંબુ વિશે આપણે વધારે પડતી જાણકારી લેવાની છે. બાંબુ શું છે, બાંબુની ખેતી કેમ જરૂરિયાત છે, અને એ ખેતી કરવાથી આપણે પરંપરાગત ખેતી તો આપણે અત્યાર સુધી ઘણી બધી ખેતી કરી ચૂક્યા, પરંતુ એ ખેતીમાં ખેડૂતને જોઈએ એવો નફો મળતો નથી, અને નફો ન મળવાને કારણે ખેડૂત દેવાદાર બને છે. તો આ જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય છે અને ખેડૂત દેવાદાર બને, આત્મહત્યા કરવા માટે પ્રેરિત થાય છે. કેમ કે સામાજિક ખર્ચા, પોતાના ખર્ચા, આ બધા ખર્ચા કાઢવા ક્યાંથી? તો ખેડૂતને ખેતીમાંથી ઉપજ મળે એની ફેક્ટરી, તો એ ફેક્ટરીમાંથી જો પૈસો પૂરતો ના મળે તો પછી એનું જીવન નિર્વાહ કરે કેવી રીતે? તો ત્યાં પ્રશ્ન આવીને ઊભો રહી જાય કે કરીએ તો કયો ક્રોપ કરીએ. અત્યાર સુધી મેં મારા પોતાના અનુભવમાં ઘણા બધા પ્રકારના ક્રોપની અંદર અમે ફર્યા હર્યા, જાણ્યું છે. તેમ છતાં પણ ત્યાં આગળ જે આપણે પૂરતું મળવું જોઈએ, 12 મહિનાની મહેનત પેટે તે મહિનાનો એક કોઈ ફિક્સ રકમ આવવી જોઈએ, પણ એ પ્રકારે એટલી રકમ આપણી આવતી નથી, અને પરિણામ સ્વરૂપ આજે ખેડૂત દર ભટકે છે. અહીં જાઓ, ત્યાં જાઓ, આની પાસે જાઓ, પેલાની પાસે જાઓ, પણ તેની રાવ કોઈ સાંભળવા વાળો કોઈ છે નહીં. દાબ દબાણ કરો, આ કરો, તે કરો, એટલે કેટલી બધી લમણાથી માણસ છેલ્લે કંટાળી જાય છે. ખેડૂત થાકે, ખેડૂત પોતાનું ખેતી કામ કરે કે પછી આ લોકોની પાસે પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરવા રજૂ થાય. એટલે આ બધી જે સમસ્યાઓ નડી રહી છે, ખેડૂત પોતે પણ જવાબદાર છે. એટલા માટે આજે આપણે અહીંયા બધા એકત્રિત થયા છે. મારા આમંત્રણને માન આપીને આપ સૌ અહીંયા પધાર્યા, આપ સૌનો હાર્દિક આભાર. હવે આપણે એક થોડોસો પરિચય આપી દઉં. આપણી વચ્ચે અધ્યક્ષ સ્થાને બેઠા છે અત્યારે ગણેશભાઈ, ગણેશ કિસાન. એ બળવાની મધ્યપ્રદેશ તલોનથી આવ્યા છે. એમની ત્યાં મોટી ફેક્ટરી છે, નર્સરી છે, રેવા ફ્લોરા ટિશ્યુ કલ્ચર. અમે ત્યાં મુલાકાત લઈ આવ્યા છે, અને એ મુલાકાત લીધા પછી અમે બાંબુની ખેતી કરવા માટે અમે પણ પ્રેરિત થયા. એવી રીતે આજે તમે અહીંયા આગળ એમને ક્વેશ્ચન કરજો. એમનું એક લેક્ચર હશે, એ લેક્ચર એમનું પૂર્ણ થયા પછી તમને જે કંઈક મનમાં ક્વેશ્ચન થાય એ ક્વેશ્ચન આપણે સોલ્વ કરતા જશું. આપણે બાંબુના પ્લોટની વિઝિટ કરવાની છે, દરમિયાન આપણો નાસ્તો પણ આવશે, નાસ્તો બી કરવાનો. અને આ બધું કર્યા બાદ બાંબુ શું છે, બાંબુને આપણે પ્રત્યક્ષ જોવું પડશે, અને તે જોયા પછી જ આપણને ખબર પડશે કે તેની અંદર આપણે આ ખેતી કરવી કે ન કરવી. તો જે તે ખેડૂત પોતાનો નિર્ણય આમાં લઈ શકે છે, બરાબર. તો આપણે ન જોઈએ ત્યાં અમે બી ઘણા બધા પ્લોટ જોયા, એટલા બધા પ્લોટ જોયા ત્યાર પછી જ અમે આ વસ્તુ પર આવ્યા. તો એવી રીતે આજે મેં એમને, અને બીજી વસ્તુ, આ ભારતીય કિસાન સંઘ ભરૂચ જિલ્લા પ્રમુખશ્રી છે, મિસ્ટર સંયોજકમાં છે. એટલે જિલ્લાના તમામ જે એમને એક મોટો વિસ્તાર આપવામાં આવેલો હોય છે, એમની જવાબદારી એમની શિરે હોય છે. પછી આ માધુભાઈ તડવી, એ તાલુકા પંચાયત ડેડિયાપાડા ઉપપ્રમુખ છે. પછી આ કોટી પહેરેલા સાહેબ છે, એ આપણે ધારીખેડા સુગર ફેક્ટરીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે. બાજુમાં તમારો પરિચય આપી દો. હા, તમારો પરિચય આપી દો. સુરેન્દ્રસિંહ અંકલેશ્વર, જિલ્લા સંયોજક ભારતીય કિસાન. તમારો ઇલેશભાઈ પિયુષભાઈ પટેલ, મુકામપુર વાગરા, અને ખેતી જ કરીએ છીએ. હા, લીંબુની ખેતીમાં. તો હવે આપણે આગળનો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. બાંબુ વિશેની માહિતી થોડીક લેક્ચર એમનું સાંભળી લઈએ. ગણેશભાઈ કિસાન, આપ હવે આગળનો કાર્યક્રમ ચલાવો. नमस्कार. थोड़ा सा समय हुआ इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग यहाँ पे राह देख रहे थे, लेकिन क्या हुआ ना, लोकेशन डालने के बाद में हम लोकेशन ने इधर उधर घुमा दिया गूगल आई डी. ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा. और आप जितने बारिश में भी यहाँ पे रुके हुए हो सुनने के लिए, मैं थोड़ा सा मेरा छोटा सा परिचय बताना चाहूँगा. मैं हूँ गणेश किसान. मैं एक्चुअल बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, रावेर तहसील है मेरा.
लेकिन मैं पिछले 4 साल से बलराम किसान जी के साथ में किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर निरंतरता से काम कर रहा हूँ। उसमें हम लोगों ने 4 क्रॉप को पकड़ के रखा है, केला, गन्ना, पपीता और बांस। बांस हमें पिछले 3 साल पहले पता चला कि बांस में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि बांस से काफ़ी किसान पीछे की ओर भाग रहे थे। इसमें मेन मोटो क्या है कि हम लोग अभी तक जो खेती कर रहे हैं, जो कोई भी खेती हम लोग कर रहे हैं, उसमें उतना नफ़ा नुकसान वो चीज़ें हम लोग डायरी पेन पर नहीं है, तो हमें ख्याल भी नहीं है कि हम लोग खेती क्यों कर रहे हैं। गन्ना किया, पपीता किया, केला किया। अभी केला इस साल में मैं बताऊँ कि मोटा मोटी अच्छा रेट है, सबको लगता है कि मैं केला लगा। अगले साल वही होगा क्या, बल्क में केला आएगा तो रेट क्या होगा, डाउन जाए। कम हो जाएगा। प्याज का रेट बढ़ा तो प्याज लग जाएगा, आप पता चला 4 महीने बाद प्याज बेचने जाओ तो कोई खरीदने वाला नहीं। तो किसान को एक शाश्वत खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा कि एक फिक्स इनकम और हर साल नई फसल लगाना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हर बार कल्टीवेशन, हर बार नई फसल, तो किसान को अभी तक मतलब एक नया रास्ता नहीं मिला है। अभी इन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया, आज के 1 साल पहले ये आए थे मेरे हिसाब से। 1.5 साल पहले आए थे और वहाँ पे लैब विजिट किया, वहाँ के किसानों के बैम्बू लगाए हुए प्लॉट कुर्सी देगा ना पापा, बलराम भैया भी कुर्सी। साथ में थे। हमारा काफी कुर्सी सारे कुर्सी क्वेश्चन इनके मन में थे, क्योंकि बस ठीक है। उम्र के हिसाब से मैं काफी छोटा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से आप मेरे से सबसे बड़े हो, क्योंकि आपने आज तक सारी खेती कर ली है, बराबर। प्रैक्टिकल में आप मेरे से बड़े हो, लेकिन हम लोगों ने जो जिया है, जो पिया है, हम लोग जो हर समय किसान की समस्या समझकर उसका जो निचोड़ निकाल कर कुछ नए क्लू लेकर आ रहे हैं, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छे साबित हो रहे हैं। वो कोई भी खेती आप कर रहे हो, अभी बाम्बू खेती आपने शायद काका जी का प्लॉट विजिट कर लिया है क्या? मैं अभी जाना है। आपके मेन प्रॉब्लम क्या है, आज तक की खेती करने के मेन प्रॉब्लम क्या है, और आप क्या सुनने के लिए मेरे सामने आप बैठे हो, ये अगर मैं समझूं तो मैं शायद पूरा ओपन हो जाऊँ आपके सामने। जो मैं मेरे अंदर में जितने भी मैंने सवाल जवाब जो करना है आप लोगों से, क्योंकि मुझे समझ में आया कि आप लोगों की दुविधा क्या है, उसका निवारण मैं क्या करूँ। तो आपकी तरफ से कुछ ऐसे क्वेश्चन मुझे पूछो, वो बैम्बू रिलेटेड हो या कोई अन्य चीज़ें हो। अभी तो बैम्बू का ही थोड़ा सा सेशन रहेगा, तो वो चीज़ें आप पूछो, तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर देने का मैं 100 प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं भी किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर हम खुद सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। हमारा स्लोगन ही वही है, किसान पाठशाला मंच में हर क्रॉप के लिए हम लोग खुद सीख रहे हैं और किसानों को सिखा रहे हैं। पता चला कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसमें परिपूर्ण उन्होंने हमसे भी ज़्यादा नॉलेज लेके रखा है, तो उनसे भी हम लोग ज्ञान अर्जित करना सीख रहे हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछो, तो शायद मैं उसका आंसर आपको दे सकूँ। पहले हमारा नॉलेज तो बांस की खेती में जीरो है। आप पहले ये समझाइए कि खेती क्या होती है। और अच्छा, बांस की खेती क्या होती है, हाँ। ये क्वेश्चन आ गए। और क्वेश्चन सही है आपका, बांस की खेती, ये चैप्टर 10 मिनट का है। मुझे चैप्टर कम से कम आपको मुझे 1 घंटा सुनना पड़ेगा। सुनने के लिए तैयार हो? कम से कम 1 घंटा लूंगा आप लोगों को। क्या सुनने के लिए तैयार हो? बांस की खेती कैसे करें, कैसे करें, क्यों करें, क्या होती है, और हम बांस होने के बाद उसका उपयोग क्या ले कौन जाता है, ये थोड़ा समझाइए। ठीक है। शायद आपका मैंने परिचय लेते समय आप शुगर मिल के चेयरमैन होना, डायरेक्टर। और डायरेक्टर, ठीक है, आप मेरे काम में आओगे। और जाने दीजिए, मेरे हिसाब से मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपका बेटे जैसा ही हूँ। पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बांस में इसलिए आया हूँ, और बांस क्यों लगाना चाहिए। जैसे आप अगर देखो कि आज के डेट में ऊर्जा क्षेत्र देखो या पेट्रोलियम सेक्टर, ऊर्जा मतलब क्या कि जो चीज़ें जल रही है, मतलब पेट्रोल भी जल रहा है, आपका कोयला भी जल रहा है, जहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूट अगर देखोगे
तो लकड़ी इसका सब्स्टिट्यूट निकल के आता है, लेकिन लकड़ी हम लोग जंगल से काट के नहीं ला सकते क्योंकि उसको तो पहले ही हमने खत्म कर दी है। तो ऐसा कौन सा साधन है हमारे पास जिसे हम हर बार कटिंग करके हर बार उसको नया रूप से उसको लेकर आए, बराबर। तो बांस एकमात्र ऐसा पौधा है जो एक बार लगाने के बाद में सालों साल ये चलता है। बांस में कुल मिला के मैं अगर बोलूं भारत की बात मैं करूं तो भारत में 120 प्रजाति है बांस की, जिसमें से 5 से 7 को ही अपन ने पकड़ के रखा है जो चलित रूप में है, बाकी सबके नाम है। तो सबसे अच्छा और बेस्ट बांस जो निकल के आया है वो बाम्बूसा बालकुआ, सेकंड में बाम्बूसा बैम्बूस कटंगा, उसके बाद में टुल्डा, उसके बाद में डेंड्रोकैलिमस टॉक्स्टिक जो स्टिक्टस जैसा होता है, मानवेल जिसे बोलते हैं वो भी है। कई सारी प्रजातियां है, ब्रांडिसी है, एस्पर है, न्यूटन है, पॉलीमार्फा है, लॉन्जिस पैथस है, कई तरह के बैम्बूस है। लेकिन 3 से 4 बैम्बू की प्रजातियां हैं जो भारत में इजीली ग्रो कर जाती है और जल्दी हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, बराबर। तो बैम्बू में बैम्बूसा बालकुआ को समझा है जो हर किसी जगह पे हर कोई मौसम में इजी से हो सकता है और एक बार लगाने के बाद में सालों साल अपने रूट शूट देते रहता है। जैसे काका जी आज के 1.5 साल पहले हमारे पास आए थे तो हमने इनको बोला था कि 4 साल के बाद ईल्ड आती है। सही बात है काका जी, राइजोम वाला पौधा लगाया भी तो 4 साल के बाद ईल्ड आती है कटिंग के लिए, क्योंकि हम लोग भी कुछ सीख रहे हैं। आज 1 साल में काका जी के यहाँ का प्लॉट ऐसा है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि ये चमत्कार है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक बांस को ऐसी जगह पे लगाया है जहाँ पे कुछ नहीं होता है। सही बात है, मतलब वेस्ट लैंड, पहाड़ी लैंड या पथरीली लैंड या फिर कई जगह पे ऐसे नदी नाले का जो बहाव या कटाव होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे उतना चाहिए उतना उसको न्यूट्रिशन या पानी नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से उतना हाईली वो ग्रो नहीं करता है। अभी जमीनों में जब लग गया, जैसे आज की डेट में मैं बात करूं कि किसान पाठशाला 2.5 साल पहले से बाम्बू लगाने के लिए लोगों को जब से प्रेरित किया है, तो हमने राजस्थान जैसी रेगीली मिट्टी पर भी हमने बांस को ऊपर कर दिया। लोगों में भ्रम था कि यहाँ पे बांस होगा या नहीं होगा, हमने कहा जहाँ घास होगा वहां पे बांस होगा। घास तो हर जगह पे होता है, जैसे आज बारिश में बताऊं कि पिछले 15 दिन से बारिश हो रही है, तो पहाड़ीली जहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे तप रहे थे पहाड़, वहां पे भी घास आ गई इतनी बड़ी बड़ी, तो वैसे पहाड़ों पे भी हम लोग बांस लगा सकते हैं। तो बांस हमारा न्यू रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। दूसरी बात, बांस क्यों लगाए? जैसे हम हर साल नई फसल लगा रहे हैं, अगर हम लोग पूरा जोड़ जाड़ के अगर लास्ट पन्ने पर अगर जाए कि खर्चा काट के हमारे हाथ में कितना आया, तो 1 लाख रुपए खर्चा किया है और मोटा मोटी हमारे पास 1.5 से 1,40,000 रुपए जेब में आया है। तो हमने कुल मिला के पूरे 6 महीने की साइकिल में, क्रॉप साइकिल में 40,000 रुपये हमारे जेब में मिला है। लेकिन उसमें अगर आपका भी आप जोड़ते हो, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि हम भी खेत में जा रहे हैं और हम भी मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर आपका जोड़ रहे हो 6 महीने में, तो आपका भी 8,000 रुपये महीना जोड़ा तो वो भी खत्म, क्योंकि 8,000 महीना तो चाहिए हम लोगों को। दुकान में भी काम करोगे तो कम से कम 10,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो वो जोड़ोगे तो फिर खेती करना मतलब क्या, एक सर्कल बन जाएगा, उसके तरफ कोई बढ़ेगा नहीं। तो इसके लिए बांस अगर लगाया, जैसे बांस में मैं बताऊं कि बांस लगाना कैसे है और कौन कौन सा लगाना है। 3 तरह की सॉइल होती है, एक पहाड़ीली मिट्टी है, एक मीडियम सॉइल है जहाँ पे पथरीली कंकरी होती है, और एक अच्छी सॉइल है। 3 तरह की मीडिया हर जगह पे मिलता है। तो तीनों जगह पे बैम्बू लगाना कैसे है? जैसे पहाड़ी वाली मिट्टी है, पर्वत जैसी है, जहाँ पत्थर है, वहाँ पे 12 बाय 4 लगाना है, लाइन से लाइन 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 4 फीट। तो 1 एकड़ में 950 पौधे लगते हैं। अभी उस जगह पे बैम्बू लगाते समय करना क्या है, जैसे पहाड़ीली मिट्टी है, मिट्टी का स्ट्रक्चर है ही नहीं, है भी तो ऊपर के 4 इंच या 6 इंच के लेयर में है, और हमें तो वहाँ पे गड्ढा करके लगाना है। तो वहाँ पे 1.5 बाय 2 का गड्ढा करना है, ऐसा 1.5 फीट और गहरा 2 फीट। उसमें काली मिट्टी
और बायोमास कार्बन, जैसे छाड़िया खातर अपन बोलते हैं, अपने इधर गोबर नहीं बोलते हैं, छाड़िया खातर बोलते हैं, उसको मिक्स करना है और उसी गड्ढे में आपको बैम्बू प्लांटेशन इन दिनों में करना है, अभी बारिश के दिनों में, ताकि उस पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा और वाटर लॉगिंग भी हो जाएगा, तो वो पौधा अपना जर्मिनेशन कर लेगा। सेकंड लाइन आती है पहाड़ीली मिट्टी, मतलब 1 से 1.5 फीट की मिट्टी है, वहां पे 12 बाय 5 पे पौधा लगाना है, लाइन से लाइन 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट, तो इसमें 750 पौधा आपका लगेगा। अच्छी लैंड जहाँ पे हम लोग कपास, भिंडी, तेंडी या गन्ना जो भी चीजें बो रहे हैं, उसमें लाइन से लाइन 12 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी सॉइल कमजोर होगी उतने शूट कम आएंगे, बराबर। तो शूट कम आएंगे तो कैनोपी भरने के लिए समय ज्यादा लगेगा। जितनी सॉइल अच्छी होगी उतने कम पौधों की संख्या भी होगी, तो उतने ज्यादा शूट उसको आएंगे। एक पौधे को अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिले, मतलब अच्छी मिट्टी का स्ट्रक्चर अगर मिले, तो 1 साल में 14 से 15 सूट आते हैं। कितने? 14 से 15 सूट। पहाड़ीली मिट्टी के ऊपर अगर हम देखें तो वहां पे 5 से 6 सूट देता ही देता है, आप पानी दो या मत दो, ऊपर नेचुरल तरीके से भी। लेकिन बैम्बू लगाने के बाद में शुरुआती के 1.5 साल तक आपको बैम्बू में पानी देना ही पड़ेगा, उसको जर्मिनेशन करने के लिए। एक बार उसने जर्मिनेशन स्टार्टअप कर लिया, अपना राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिया, उसके बाद में उसे पानी देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप पानी ऑब्जर्वेशन करके स्टोरेज करके रखता है। आने वाली गर्मी के लिए वो अपने पत्तों से पानी खींच लेता है। शायद आपने देखा होगा कि आज के 1.5 महीने पहले अगर आप कोई पौधे के पास अगर जाते हो तो अपनी पत्तियों से वो पानी खींच लेता है। वो क्यों खींचता है? अपन उसे वसंत बहार बोलते हैं। एक्चुअल उस समय उसको वो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपने पत्तों से पानी पूरा खींच लेता है, पीलापन कर देता है, और वो पत्तों का पानी क्लोरोफिल अपने बॉडी में यूज करता है। उसको पता है कि 1.5 से 2 महीने बाद फिर से बारिश होने वाली है और फिर से नए फुटाव उसमें पत्तों के दिखना शुरू हो जाते हैं। हमें ये नेचुरल तरीके से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इसका हमें पता नहीं है, क्यों किस लिए, इसका अगर हमारे पास जवाब आंसर आ जाए तो शायद हम लोग अलग अलग रास्ते नहीं चुनेंगे, एक रास्ते से हम लोग साथ में चलेंगे। बैम्बू की प्रजाति में हमने 4 बैम्बू को पकड़ के रखा है। बैम्बूसा बालकुआ, बैम्बूसा बैम्बूस कटंगा जो आता है, तीसरा बैम्बूसा टुल्डा, चौथा मानवेल प्रजाति आती है वो भी है। आपको लैंजिस पैथस भी लगा सकते हो, पॉलीमार्फा भी लगा सकते हो। हर कोई बैम्बू का यूज अलग अलग है। जैसे बैम्बूसा बालकुआ और बैम्बूसा बैम्बूस कटंगा और मानवेल और न्यूटन अगर लगाया तो ये अच्छा डेंस वाला बैम्बू आता है, मतलब भरा हुआ आता है। इसमें बायोमास कार्बन बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा और अच्छा होता है बैम्बूसा बालकुआ, जो मोटा और हाइट जाता है, 30 से 40 फीट की हाइट जाता है और बीच में पोला खाली इतना रहेगा, एक उंगली बराबर। तो इसमें पल्प और गुदा ज़्यादा रहेगा, तो इसमें बायोमास कार्बन बहुत ज़्यादा मिलता है। अभी इसके उपयोग क्या क्या है, उपयोगी सुनने हैं ना, क्योंकि हमें तो सारी चीज़ें ठीक है हम लगा भी देंगे, बेचेंगे कहाँ पे? तो बेचने के लिए आज के 2.5 साल पहले हम लोगों ने खुद रिसर्च किया, बहुत झोले झपेटे, कम से कम भैया ने न्यू जिप कंपास ली हुई थी, 6 महीने में रिप्लेस करनी पड़ी कंपनी को। इतनी घूमे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने घूमे होंगे। लेकिन उसका निचोड़ लास्ट में निकल के आया कि खाली बातें हो रही है, काम नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं है। पिछले 1.5 साल से काफ़ी काम कर लिया है। जैसे हम लोग पहले बोलते थे CNG, इथेनॉल, तो ये चीज़ें बोलने में थी, डॉक्यूमेंट में थी, लेकिन प्रात्यक्षिक देखने के लिए कहीं नहीं मिला। भारत तो छोड़ो, भारत के बाहर भी एक लिमिटेड ही प्लांट है। लेकिन पिछले 1.5 साल में इतना बड़ा ब्लूम हुआ कि आप लोगों के पास शुगर मिल में सबसे पहले आया कि 20% इथेनॉल आप हमें दोगे, आया है ना अपने पास। तो वो बायोमास कार्बन से ही आपको कलेक्ट करके लाना है, बराबर। अभी आप मुझे बताओ कि पिछले 2 साल से गन्ने में उसका CN रेशो कितना आ रहा है? बहुत कम आ रहा है उत्पादन। उसका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उसका सेल्यूलोज, ये चीज़ें बहुत कम हो गई है, बराबर है ना। मैं अंकल से इसलिए पूछ रहा हूँ कि काका अंकल के पास
सारे डाटा मिलेंगे आपको, क्योंकि लाइव में है वो, चेयरमैन सीट पे है तो उनको पता है। तो अभी गन्ना तो ठीक है, गन्ने में करना क्या पड़ता है, हर बार कल्टीवेशन, हर साल नया बोना, उसमें फर्टिलाइजर देना ही है। और फर्टिलाइजर की कीमतें आपको पता है कि कितनी हाइट ले चली गई है। अभी गन्ना ठीक है कि हमारे शुगर के लिए, सारी चीज़ों के लिए बेस्ट है, लेकिन गन्ने की पानी की रिक्वायरमेंट भी उतनी है। अगर उसको 1 एकड़ को 1 लाख लीटर पानी अगर लगता है, तो बैम्बू को 1 लाख लीटर नहीं, 1 लाख लीटर ही पानी लगेगा। इतना कम पानी, उसके 20% बस। तो उतने में हम लोग, जैसे उधर 1 एकड़ खेती कर रहे हैं, तो इसमें 10 एकड़ हम लोग खेती बैम्बू की कर सकते हैं। और बैम्बू का बायोमास भी आपको इथेनॉल ही प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसकी प्रोसीजर के लिए कम से कम एक क्लस्टर फार्मिंग होनी चाहिए। एक क्षेत्र में कम से कम 2000 एकड़ का बैम्बू अगर हमारे 50 किलोमीटर के एरिया में लग रहा है, तो गवर्नमेंट आपके लिए वहाँ पे एक छोटा मिनी प्लांट लगाएगा। तो वो वहाँ से बाय प्रोडक्ट आपके लिए इथेनॉल और CNG निकाल के लाएगा। तो इसमें एक बार इथेनॉल अगर आता है, तो इथेनॉल में कई तरह के गैसेस बनाते समय कई तरह के गैसेस आते हैं। आपके पास भी नाइट्रोजन भी मिलेगा, हीलियम भी मिलेगा, आर्गन गैस भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, कई तरह के गैसेस फ्यूल उसमें से निकलते हैं। तो उसमें डाइजेस्टर बैग होती है, उसमें अलग अलग में वो कंडक्ट करके फिर उसको भी मार्केट में बेचने का रेशो है। तो वो लॉन्ग प्रोसेस है, उसके लिए कई सारे डाटे अभी आ गए हैं। शायद 4 साल के बाद वो डाटे अपने पास आ जाए, क्योंकि पेट्रोल में 20% इथेनॉल ऐड करने का पूरा सिस्टम गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। और अभी जो लाइव प्लांट चल रहे हैं, जैसे शुगर मिल आज के डेट में तुरंत उसको रिप्लेस करके दे सकता है, तो इसलिए शुगर मिल को बोला है कि कम से कम 20%, तो ये 10% तो दे दे। तो आगे चलकर फिर इसके ऊपर पूरी मोनोपोली बन गई है। जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, तो छत्तीसगढ़ में प्लांट अथॉराइज हो गया है, और वहाँ पे प्लांट, उड़ीसा में जहाँ ऊपर की दिशा में जितनी जगह पे भी बांस लगा हुआ है, अपना अरुणाचल प्रदेश वगैरह जितना भी है, वहाँ पे इन्होंने प्लांट प्रोवाइड कर दिए। आज की मैं बात करूँ, ये प्लांट बहुत आगे वाले हैं, CNG वाला भी प्लांट आगे वाला है। लेकिन आज ऊर्जा सेक्टर में, जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गई, आपके NTPC के औष्णिक विद्युत केंद्र हो गए, जहाँ पे आज की डेट में कोयला जल रहा है, बराबर। तो कोयला आज अगर आप देखोगे, तो आज के 10 साल पहले कोयले इतने बड़े बड़े आते थे, ऐसे आते थे। आज कोयला पाउडर स्वरूप आ रहा है, बराबर। देखा है किसने कोयले की गाड़ी जाते समय, पाउडर स्वरूप, मतलब वो कार्बन भी उतना अच्छा, उसमें कैलोरीज वैल्यू होती है, जितना बड़ा और मोटा रहेगा उसकी कैलोरीज वैल्यू उतनी अच्छी रहेगी। मतलब उसकी कैलोरीज वैल्यू 8600 के ऊपर थी। अभी आज की डेट में हम पाउडर फॉर्म अगर लेकर उस औष्णिक विद्युत केंद्र में अगर डाल रहे हैं, तो वो कम से कम 5200 से लेकर 5800 कैलोरिक वैल्यूज की आ गई है। और बांस को ही उसके विरुद्ध दिशा में रख दो, तो बांस की कैलोरिक वैल्यू 4200 से 4800 तक है। कोयले का सब्स्टिट्यूट है ना। तो हम इसको कटिंग प्रेसिंग करके इसको व्हाइट पैलेट्स के जरिए हम लोग वहां पे ऊर्जा क्षेत्र में दे सकते हैं। बहुत बड़ा ये है। हम लोग नॉर्मल आपके क्षेत्र में, आपके एक गन्ना फैक्ट्री की मैं बात करूं तो उसमें भी कोयला लगता है बॉयलर जलाने के लिए, तो आपको भी बायोमास कार्बन की ही आवश्यकता लगेगी। और बायोमास कार्बन अकेला पेड़ है जो बैम्बू ही आपको दे सकता है। अन्य पेड़ तो आपको पता है कि मैं आज कोई दूसरा पेड़ लगाऊं तो 5 से 7 साल बाद दिखेगा, और 10वें साल बाद मैं अगर उसको कट करूं तो वहां की जगह खाली है, उसका नया शूट रूट नहीं आएगा। बैम्बू एकमात्र ऐसा पौधा है, कोई भी पौधा लो बैम्बू का, उसमें रूट और शूट। अगर आज मैंने एक बैम्बू का पौधा लगाया है तो आज के 2 साल के बाद उस बैम्बू के पास 25 से 30 शूट रहेंगे नए, जिसकी हाइट 30 से 40 फीट ऊपर की रहेगी। उसमें से मैंने 2 साल के बाद अगर 5 ही लाठियां काटी, कितनी 5 लाठियां, 25 अगर है तो उसमें से 5 लाठियां मैंने काटी, तो 20 लाठियां उसके पास में है। ये इसलिए है कि उसकी साइकिल रेशो चलने के लिए, क्योंकि जितना पुराना बांस आपके खेत में खड़ा रहेगा उतना मोटा और उतना हाईटेक आपको शूट देगा, और जितना मोटा और जितना हाईटेक शूट देगा उतना ज्यादा बायोमास कार्बन आपको मिलेगा।
और जितना ज़्यादा बायोमास कार्बन आपको मिलेगा उतना पैसा आपके जेब में आएगा। बराबर। अभी ये जगह पे बेचे आएंगे। कैसे जाता है, नॉर्मली मोटा मोटी देखा जाए तो 1 एकड़ में आप कैलकुलेटर चलाओ तो आपको समझ में आएगा। बराबर। अपने यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि अपने यहाँ पे लैंड अच्छी है, तो 1 एकड़ में हमने अगर 650 पौधे लगाए 12/6 पर, कैलकुलेटर निकालो क्योंकि मैं पटपट बोलूंगा तो पटपट समझ में आना चाहिए। एक आंकड़ा आ जाए ना आंखों के सामने तो पट्टी हट जाती है। 12/6 पे अगर हमने बैम्बू के पौधे लगाए तो 650 बैम्बू के पौधे हमने लगा दिए। अभी 2.5 साल के बाद राइजोम वाला पौधा अगर आपने लगाया तो एक पौधे के पास 25 से 30 सूट आते हैं। कितने? 25 से 30 सूट। हम लोग 25 सूट ही पकड़ते हैं। कितने? 25। 650 गुणित 25 कर लो, 16,250 लाठियाँ आपके खेत में खड़ी है। अभी उसमें से काका ने बोला कि अभी यार 2.5 साल हो गए, 2.5 साल के बाद कुछ जेब में तो आना चाहिए, तो 2.5 साल के बाद हर पौधे से 5 लाठियाँ कट की। 650 गुणित 5, 3200। अभी मैं किसान का मोरल देखता हूँ कि बहुत डाउन होता है। हम लोग खेडूत हैं, हमें पता है कि मार्केट में अच्छा रेट चल रहा है। मैं आज बता के जाऊँ कि 70 और 100 रुपए में बल्ली जा रही है यार 40 फीट की कितनी। लेकिन काका ने बेचते समय निकाला बल्लियाँ तो एक बल्ली 40 रुपए में ही गई। कितनी? 40। 80 है लेकिन 40 में गई, उसको गुना कर दो 40, 1,30,000 रुपए 1 एकड़ से इनको निकल के आए। अभी काका ने किया क्या है मुझे पता है, मैं इनके तरफ बहुत नजर है मेरी। पिछले साल इन्होंने बैम्बू लगाया 11/7/2022। उसके बाद में इन्होंने गेहूं भी लगाया, उसमें गेहूं भी खाया है, और इस साल और भी कुछ लगा दिया होगा मुझे नहीं पता। मेरे महाराष्ट्र में एक ने भिंडी, गवार, वो ऑर्गेनिक खेती उसमें करने लग गया भाई, तो होम डिलीवरी वहाँ से जा रही है। तो अलग अलग चीजें, लेकिन 1,30,000 रुपए 1 एकड़ का मैंने आपको बताया, जो इन्होंने पिछले 2 साल पहले लगा दिया था और 1 साल पहले लगा दिया था, लेकिन मैं 2 साल के बाद में बता रहा हूँ। तो बीच वाली जगह भी आप यूज कर रहे हो, आपको न चाहे, आपको पता भी नहीं चला, और आपने 2 साल के बाद में 1,30 लाख रुपए का मुनाफा आपके जेब में आ गया। अभी 2.5 साल के बाद में जब आप अगले 3.5वें साल में जब जाओगे तो जो पहली लाठियाँ थी पतली रहती है, जो शुरुआती शूट निकलते हैं ना वो पतले होते हैं। इसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे शूट भी मोटा रहेगा और हाइटेड भी रहेगा। अभी आज ठीक है कि हम मार्केट में लाठियाँ बेच रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अगर 100 एकड़ का बैम्बू लगता है तो 100 एकड़ के अगर मेरे 100 किसान हैं, डर के मारे 1 एकड़ ही किसान ने लगाया, ज़्यादा तो नहीं लगा सकता है। ये 100 खेडूत एक जगह पे जमा हो जाए, जैसे आज आप जमा हुए हो, और आपकी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी प्रोवाइड करके आप अगर एक छोटा मिनी क्लस्टर यहाँ पे व्हाइट पैलेट्स का लगा रहे हो, गवर्नमेंट भी इसे प्रमोट कर रही है, और आप लोग, किसी की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन हम लोग हमारे खेत का अगर माल वैल्यू एडिशन करके बेच रहे हैं तो हम ही हमारे जेब से अगर 20-20, 25-25, 50-50 हज़ार अगर उस फैक्ट्री लगाने के लिए डाल रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन करने के बाद आपका व्हाइट पैलेट्स का रेट 7 रुपये से लेकर 12 रुपये केजी तक का मिलता है। अगर आपके खेत से मैं कंपनी लगाकर परचेज करने का बोलूँ तो मैं 1.5 से 2 रुपये किलो खरीदता हूँ, लेकिन फिर भी 1 एकड़ से कितना मिलता है। जैसे अभी आपने 5 किया ना, गुणित 5 किया, तो एक बैम्बू जो गीला अवस्था में होता है, जिस दिन कटाई होती है, उसका मिनिमम वेट 25 से 30 किलो होता है। कितना? 25 से 30। मैं शुरुआती 2.5 साल की बात कर रहा हूँ, चौथे से 5वें साल का मैंने कम से कम 50-40-40, 50-50 किलो का वेट मैंने गिना है, लेकिन हमें 2.5 साल का एवरेज बताना है। तो 2.5 साल का एवरेज अगर एक लाठी का वेट अगर 25 किलो भी आता है तो 650 लाठियों का कितना आएगा? गुणित 25 करो उसका 16, और इसको गुणित 2 करो, क्योंकि 2 रुपये किलो, वो कटिंग करने वाला 2 रुपये किलो लेके गया। 32,500 रुपये का इनका ही बांध। उसने छोटी काठी भी काट के लेके गया, साफ सफाई भी हो गई 2.5 साल के बाद। अभी आने वाले हर शूट आपके नए अच्छे रहेंगे और हाइटेड रहेंगे, तो बायोमास कार्बन आपका डबल हो जाएगा अगले साल। और वाइट पैलेट्स लेने के लिए कहीं, बेचने के लिए कहीं जाना नहीं है,
सूरत है अपना, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ बॉयलर जल रहा है वहाँ पे आपको ये देना है। या फिर एनटीपीसी के ऊपर अभी मीटिंग होने के बाद में गूगल के ऊपर एनटीपीसी डालो और व्हाइट पैलेस रिक्वायरमेंट डालो। मैंने आपको भी बोला था उस समय। आज तक नहीं टेंडर भरा है किसने उसका, आज तक नहीं किसी ने टेंडर नहीं भरा है, क्योंकि किसी मजाल नहीं कि उसमें पैर रख दे। और लाएगा कहाँ से इतना बैम्बू? और दूसरा पेड़ गवर्नमेंट कटने नहीं दे। 2000 करोड़ रुपए का टेंडर उन्होंने उस समय से अभी तक निकाल के रखा है। फुलफिल खाली 7-8 लोग हुए हैं, वो भी पेपर पे है, उसको हाथ नहीं करवाए है, क्योंकि उनको पता है कि बैम्बू इतना लगा ही नहीं है। और आज तक बैम्बू लगा भी है तो वो गवर्नमेंट ने लगा के रखा है उनके वन क्षेत्र में। आपके पास जो भिंडी, खीरा, ककड़ी, टमाटर के लिए जो लाठियाँ आती है ना, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से आती है। एमपी गवर्नमेंट अभी बैम्बू कटिंग करना चालू है उनका, वो लाठियाँ ग्रेडिंग करके बेचती है मार्केट में। आपके पास जो छोटी 8 फीट की लाठियाँ आएगी, ये ऊपर की चोंच है, नीचे बीच वाला जो हिस्सा जाएगा वो अलग जगह पे जाएगा, और उसके नीचे वाला जो हिस्सा जाएगा वो जैसे ग्रीन हाउस वगैरह जो बना रहे हैं उसके स्ट्रक्चर बेस के लिए वो बैम्बू देते हैं नीचे, वो मोटा वाला, वो ग्रेडिंग करके ही भेज रहे हैं वहां से, बराबर। दूसरी बात, बैम्बू इसलिए लगाना है कि अभी मैं मेरी तरफ टर्न हो रहा हूँ, मैंने आपके जेब में पैसे आने के आपको ये बता दी, इसमें कोई शंका है आप लोगों को? बैम्बू लगाना क्यों है और पैसे कैसे आएंगे मैंने बता दिया। सबसे छोटा सेक्टर है। आज तक हमने भी बोला कि सीएनजी, इथेनॉल, लेकिन ये ठीक है 4 साल के बाद ये आने वाला है, इसके लिए काम चल रहा है। आज के लिए क्या है, तो आज के लिए तुरंत बेटर ऐसा है कि कोयले का सब्स्टिट्यूट व्हाइट पैलेट्स है, उसको डायरेक्ट क्रशिंग फिशिंग करके डायरेक्ट डाल दो, और अकेला बैम्बू ही उसके लिए काम में नहीं आएगा। आपके खेत में अगर पराली है, आपके खेत में अगर कपास लगाया है, कुछ भी डालो उसमें, लेकिन बैम्बू इतना कैलोरीज वैल्यू कोई नहीं देगा। आपका वो जो रेट है वो कम हो जाएगा। अगर बैम्बू में 7 रुपये रेट मिल रहा है तो इसमें 5 रुपये मिल सकता है या 3 रुपये मिल सकता है, क्योंकि कैलोरीज वैल्यू जिसकी ज़्यादा रहेगी उसका रेट ज़्यादा मिलेगा। इसमें व्हाइट कोल, चारकोल, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। चारकोल आज नॉर्मल चाय के ठेले पे भी आप जाओगे तो वहाँ जो कोयला जला रहा है ना, 10 रुपये केजी से वो मार्केट से खरीद के लाता है, जिनके घर में चूल्हा जलता है वहाँ से, है ना। और हमें ये लग रहा है कि मैं बैम्बू लगाऊँ तो करूँ क्या, और उसकी इतनी बड़ी फैक्ट्री होती है खाली चारकोल बनाने की। ऐसी भट्टी बनाते हैं, उसमें बैम्बू के टुकड़े रख देते हैं, नीचे से आधा पका, आधा जलाएंगे उसको, खाली काला हो जाए बस, और उसको निकाल के उसके टुकड़े करके मार्केट में बेच देंगे। चारकोल भी 8 से 10 रुपए केजी में बेचे जा रहे हैं। वैल्यू एडिशन की बात अगर करें, अगर हमने लगा के, हम जैसे शतावरी लगाया था यहाँ पे, हम कंपनी की राह देख रहे थे। अगर हम खुद कंपनी बन जाते उस समय तो शायद यहाँ पे आप डबल लगा देते। बहुत बड़ी डिमांड है मार्केट में, लेकिन जब अपनी डिमांड आ जाती है तो उनकी डिमांड खत्म हो जाती है। वो आदमी को उसमें निचोड़ना चाहते हैं, वो भी करेंगे क्या, उनका बिजनेस है। लेकिन किसान को एक जगह पे आना पड़ेगा। जैसे बैम्बू काका ने अकेले ने लगाया तो काका अकेला व्हाइट पैलेट डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। मोरबी की मैं बात करूँ तो मोरबी में एक क्लस्टर फार्मिंग लग रही है, चिराग भाई है हमारे साथ, तो वहाँ पे 1000 एकड़ का क्लस्टर बन रहा है। और अकेली मोरबी में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सीएनजी रेशो बहुत बड़ा है, सीएनजी ही चलता है वहाँ पे, तो उनका सीएनजी प्लांट चल रहा है। सीएनजी के साथ साथ व्हाइट पैलेट्स के लिए भी उनका काम चल रहा है। तो वहाँ के किसान या खेडूत वो एक जगह पे आ गए। तो हम लोग यहाँ की बात करें, यहाँ पे भी किसान और खेडूत को एक जगह पे आना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारा डूब क्षेत्र है आपका। और बैम्बू आप लगा सकते हो, चयन आपको करना है कि कौन सा बैम्बू लगाना है। मेरा कहने का मतलब है कि बैम्बूसा बाल्कुआई सबसे बेस्ट है। आपके आंखों देखा है, कटिंग के लिए आसान है, कैसे भी कट होके निकल जाता है। यहाँ तक किसी के सवाल है कि और बचता रहो आगे? नहीं, सवाल आने चाहिए तो मुझे समझ में आए कि मुझे समझ रहे हो आप।
अगर सवाल नहीं आ रहे हैं ना तो हाँ, ऐसे में सवाल- मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई नाटक यहाँ पे कर रहा हूँ और आप लोग कम से कम नाटक में भी बीच में हंसी आती है तो लोग तालियां बजा देते हैं, तो वो लगता है प्रेक्षकों के नहीं अपने को देख के कुछ मजा आ रहा है लोगों को। सही बात है ना? प्रैक्टिकल देखेंगे तो फिर नहीं होना क्या चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे कहीं पे भी जाओ आप, कल बांस के लिए बुलाया है, काका ने फोन लगा होगा कल आ जाना। हर किसान के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी बहुत कम उम्र में बहुत बड़े झोले झपाटे खाए। बांस के लिए बुलाया है, हमें जाना ही है, तो क्यों ना हम बांस के वो रेसिपी बना के जाए। 10 क्वेश्चन, जो सामने वाला कौन आ रहा है मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे 10 क्वेश्चन ये इसका आंसर दे दे। सही बात है कि नहीं? क्वेश्चन कौन कोई गन्ना एग्रोनॉमिस्ट आ रहा है पत्थर वाली जमीन तो मेरे आज तक के गन्ने के सारे क्वेश्चन, मुझे क्या क्या दिक्कतें आई और मैंने तो ये करके भी ये नहीं हुआ, वो लिख के जाना चाहिए। मैं केले के लिए आ रहा हूँ तो केले के लिए 10 क्वेश्चन, उसके आंसर, तभी तो मैं खुद को कुछ बना पाऊंगा कि यार मैं भी कुछ लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ। अगर क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे, मैं ही बचता रहूँगा, तो मैंने तो जितना अर्जित किया उतना तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आना चाहिए। तो बात करने में, समझने में, क्योंकि हमें पता है कि हम जितना बोल रहे हैं, जितना खाली हो रहे हैं, उतना ऊपर से भर रहा है। आदमी ने जितना खाली होना है उतना हो जाना चाहिए, तो वो भर पाएगा। પેલા પંકજભાઈનો ક્વેશ્ચન હતો ને, क्वेश्चन वाले પંકજભાઈનો ક્વેશ્ચન હતો ને પેલા ડુબાણવાળી જમીનમાં તમારા પ્રશ્નો તો ડુબાણવાળી જમીનમાં થાય છે. કેટલો સમય સુધી તમે રેતી શકો? हाँ, ऐसे क्वेश्चन करो। पानी आ जाता है उसमें, पानी कब आता है? अगस्त। कितने दिनों तक रहता है? मार्च अप्रैल के बाद में खाली हो जाए। तो हाँ, पानी भरने वाला क्षेत्र, जैसे डूब वाला क्षेत्र अगर है अपने पास, तो ऐसे जगह पे पौधा कब लगाना है? जैसे पानी भरने का पीरियड अगस्त के बाद में, तो ये रहेगा फरवरी मार्च तक। अगर अच्छी बारिश हुई तो पानी नीचे उतर जाएगा, उस समय वहाँ पे पौधा प्लांटेशन कर देना है। तो मार्च से अगस्त तक का आपको समय मिल गया और आपके पास पानी भी है। मुझे पता है अगर पानी डूब क्षेत्र में जा रहा है तो वहाँ नीचे पानी जाएगा, तो आपको उस पौधे को भरी गर्मी में पानी पिलाने के लिए है। तो डूब वाले क्षेत्र में मार्च के बाद में पौधा प्लांटेशन करना है। फिर कितना लगाना है आप लगा दो आपके हिसाब से, और पानी देते रहो। 6 महीने बाद जब पौधा अपना राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेगा, नए शूट निकाल लेगा, अगर उसके ऊपर पानी भी आ जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मुझे पता है कि जुलाई महीने में अभी बारिश शुरू हो गई, पानी भरने वाला है अगस्त में, तो हमें ट्राइकोडर्मा जैसी चीज़ें जो फंगस के लिए रोकथाम करती है, नीम केक जैसी चीज़ें जो बुरशी, फंगल, वायरल को आने से रोकता है, उन चीज़ों को वहाँ पे पौधे के पास डाल देना है और डंपिंग करके उस मिट्टी को पैक कर देना है, ताकि बारिश का पानी आए भी तो उसको क्या है, पानी धीरे धीरे बढ़ता है, उसको कुछ नहीं करेगा, जड़ों के पास सुरक्षा रहेगी। और 4 महीने बाद वो पानी में रहेगा, 4 महीने बाद पानी नीचे उतरेगा, फिर अपने लाइफ साइकिल जीना शुरू कर देगा। मैंने कोपन में टापोली में ऐसे ऐसे प्लांट देखे हैं जो अपना बॉम्बे का जो क्षेत्र है ना, किनार पट्टी, कोपन किनार पट्टी, 10-10, 20-20 साल से वो पौधे पानी में ही हैं और हर साल नए सूट निकालते हैं। उन्होंने अपना वहाँ का जीवन मान पूरा, जैसे हाइड्रोपोनिक खेती हो रही है ना, वैसे ही वो बाम्बू होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पानी में रहेगा कहाँ होगा, या तो फिर वो जमीन के नीचे गहरे में होगा। जब टूर करते हैं ना, मैं आज आपके पास आते आते 5 जगह पे रुका, जहाँ लगे वहाँ 5 मिनट रुक जाओ, उसको एनालिसिस करो, फिर बाहर निकलो। शायद पता चला कि मैं इस रास्ते से जाते समय नहीं जाऊँ, तो उस चीज़ को मैं एनालिसिस करूँ। मैंने 3-4 पेड़ ऐसे देखे जो बहुत पुराने थे, 100 साल पहले, वो गिरे हुए हैं, उसको काट लिया है, लेकिन उसके जड़ों से नए पौधे निकल के आ गए। ये भी एक अद्भुत ही है ना। 100 साल तक वो पौधा खड़ा रहा, कुछ वातावरण की वजह से हवा पानी में वो गिर गया,
उसको काट कर लेके गए, लेकिन आज की डेट में बारिश आने के बाद उसमें नए पौधे आ रहे हैं। मतलब वो आपका साथ नहीं छोड़ा है उन्होंने, आपने उसका साथ छोड़ दिया, आपने उसका कत्ल कर दिया। दूसरा, बैम्बू क्यों लगाना चाहिए, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। अभी बैम्बू का बहुत बड़ा ये हो गया कि बैम्बू लगाना ही है और क्यों लगाना है, पैसे भी आना, कैसे आएंगे ये भी बता दिया। दूसरी बात, बैम्बू सृष्टि में पूरे पृथ्वी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो 30% ज़्यादा ऑक्सीजन देने का काम करता है और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सेट करने का काम करता है। ये जब अपना ये आया था ना कोविड-19, उसके बाद में हम घरों में बैठे थे। 6 जून 2020 पहला वीडियो गिरा है बलराम किसान और गणेश किसान यूट्यूब पर। 1.5 महीना पहले मैंने बहुत बोला भैया को, भैया यार आप पौधे के लिए कुछ करो, इसके लिए कुछ करो। उसके बाद में उन्होंने मुझे 100 एकड़ की पहाड़ी जो लगा के रखी थी 2 साल पहले, उसके ऊपर लेके गए कि तेरे से पहले मैंने लगा दी, तो आज बता रहा है। और आज से मैं क्या करने वाला हूँ, तो वो खेत में लेके गए और बैम्बू का वो जो प्लांटेशन किया हुआ है वो मुझे बताया और वहाँ से बैम्बू की शुरुआत की। क्योंकि उस खेत में जब कोविड-19 चल रहा था तो ऑक्सीजन के स्रोत के लिए वहाँ पे खटिया डाल के लोग वहाँ पे सोए हुए थे बैम्बू के खेत में। वो 1 एकड़ का खेत देखा था हमने, लोग खटिया लेकर आते थे ना, वही खाना पीना ना, वही सोना, अपनी मच्छरदानी लेकर वही सो रहे थे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल मिल रहा था। आपको पता था टंकियाँ भी नहीं मिल रही थी मार्केट में, लोग तो ऐसे ही मर रहे थे, वहाँ नेचुरल स्रोत मिल रहा था। तो उस टाइम से बैम्बू में ज़्यादा परिवर्तन हुआ और बैम्बू एकमात्र ऐसा पौधा है जो कटिंग करने के लिए, जो अभी तक किसानों में द्वंद्व था कि कटिंग के लिए भी दिक्कतें रहेगी, 2017 से गवर्नमेंट ने इसको ओपन कर लिया, घास में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि बैम्बू ये घास की सबसे बड़ी प्रजाति है। तो अभी कटिंग करने के लिए किसी भी ऑर्डर या परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप आपके खेत में से कभी भी बैम्बू कट करके लेकर जा सकते हो, खाली उसकी अपने 7/12 उतारा पे नोट कर लेना है कि मैंने बैम्बू प्लांटेशन कर लिया, बराबर। दूसरी बात, बैम्बू प्लांटेशन अगर अच्छे खेत में कर रहे हो तो अंतर्वर्ती फसल आप 2 साल तक उसमें कर सकते हो। उसके बाद में बैम्बू अपने आप में बड़ा हो जाएगा, तो इसमें अंतर्वर्ती फसल आप नहीं ले पाओगे। लेकिन अंतर्वर्ती फसल आपको लगाना है तो ग्राफ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने दिए हुए हैं, तो लोगों ने 50-50 फीट के ओरे में, जैसे 10 एकड़ का एक ही प्लॉट है, तो हवा तूफान से कई चीज़ें खत्म हो जाती है। ये टमाटर भिंडी क्लस्टर है वहाँ पे बढ़वा देते हैं, तो 50-50 फीट पे लाइनें उन्होंने बना ली है, तो एक क्लस्टर वहाँ पे सुरक्षित हो जाता है, वो एक वॉल बन जाती है बड़ी, हवा पानी की न आने की, और वहाँ पे नमी भी बनी रहती है, टेम्परेचर उतना नहीं आता है, बाहर के आने वाली गर्म हवा को भी वो रोकता है, तो उसमें अच्छी तरह से दूसरी फसलें आप ले सकते हो। दूसरी बात, इसकी पत्तियाँ जो गिरती हैं नीचे, वो बायोमास कार्बन बनाती है और वही खेत में वो बायोमास कार्बन बिकता है, तो आपको फर्टिलाइज़र कम लगता है, वो ऑर्गेनिक के तौर पे भी आप काम कर सकते हो। तो जिसके पास 10 से 15 एकड़ का एक फार्म है, उसमें भी आप आपकी खेती आप अच्छे से कर सकते हो। मतलब वॉल बाउंड्री का भी काम है, बैम्बू कर लेते हैं। और कुछ पूछना है? एक्चुअल पानी का TDS जो मैं बताऊँ कि जैसे आप जैसे आगे आप निकलोगे पश्चिम की तरफ, तो उधर TDS बहुत ज़्यादा है, तो TDS तो नॉर्मल 700 तक का अच्छा है, बराबर। पानी का TDS 700 तक अच्छा है, 500 से 700, उसके आगे गया तो खारा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन आज की डेट में जैसे ऊपर का जो पानी आ रहा है, ये एक जगह हर जगह पे समान है, ये अमृत जल ही है, तो पौधा प्लांटेशन आपको इस बारिश के मौसम में करना है, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास बड़े क्लस्टर है, जैसे मोरबी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी पानी का TDS बहुत ज़्यादा है, 1200 से 1700 के आगे लगभग है वहाँ पे, बराबर। तो वो खारा ही पानी है, खारा पानी मतलब क्लोरीन, जिसमें पौधे की रूट स्ट्रक्चर काम नहीं करती, उसमें कांटे वाले पौधे आएंगे, बराबर, कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे क्लस्टर फार्मिंग के लिए जो किसानों को तैयार किया है, तो वो ऊपर के बारिश के पानी के ऊपर, दूसरे नहरें अगर जा रही है तो नहर का पानी, तीसरा स्रोत है, अगर आपके पास एक 50 एकड़ का क्लस्टर बन रहा है, तो वहाँ पे कम से कम 5 एकड़ या
1 एकड़ के लिए पानी को रोक लो। खेत पान तड़े बोलते हैं ना, हम मराठी में पान तड़े बोलते हैं। प्लास्टिक की पन्नी बिछा के पानी जमा कर लेते हैं कुछ लाखों लीटर, तो वो आपको बारिश जाने के बाद आपको वो पानी वहाँ पे, मीठा पानी वहाँ पे देने के लिए तैयार है। लेकिन गर्मी के दिनों में पानी नहीं रहेगा आपके पास, मेन पानी उस समय है, तो गर्मी के दिनों में अपना ही TDS वाले पानी उसमें दे सकते हो, वहाँ पे खाली नमी देने के लिए। उसके साथ में हाइड्रोजेल आता है, हाइड्रोजेल वाली पाउडर आती है, बराबर, वो उसके पौधे के पास डाल देना है। और आपका TDS वाला पानी आप अगर डाल दोगे तो उसकी एक्चुअल पौधा क्या है, पानी पीता नहीं है, वो वाक्सा कंडीशन में जीता है। जड़ों के पास नमी चाहिए, तो नमी के साथ अगर आप हरा TDS वाला पानी अगर दोगे, वहाँ पे हाइड्रोजन डालोगे, तो हाइड्रोजन उसको कहीं ना कहीं उसको कम करेगा और पौधा अपनी जड़ों को बढ़ाते रहेगा। दूसरी बात, सबसे मेन मज़ेदार बात क्या है कि कोई भी फसल आप लगा रहे हो तो उस फसल के नीचे जहाँ राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके ऊपर ज़मीन पर कचरा आच्छादन कर दो। क्या? कचरा आच्छादन कर दो ताकि ऊपर की सनलाइट उस मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट ना गिरे। तो रेडिएशन जो गिरेगा मिट्टी के ऊपर, तो पानी का वापसा नहीं बनेगा, मतलब भाप बन के नहीं ऊपर उड़ेगा। समझ में आ रहा है? जो पानी आज 1 लीटर उड़ने वाला था हवा में, वो कचरे के नीचे माउशर में बना रहा, तो उस पौधे की रिक्वायरमेंट बनी रही। आपने फिर से उसको 200 ml पानी दिया तो वो पानी स्प्रेड हो गया, तो वो 1 लीटर पानी और 200 ml, तो वहाँ वापसा कंडीशन बनी रही, बराबर। तो कचरा मल्चिंग आपको करके रखना है, जहाँ TDS वाली जगह है वहाँ पे, तो पानी भरण वहाँ पे होगा। ठीक है, और कोई सवाल? देखिए, पानी एकमात्र ऐसा स्रोत है, मैं आपको पानी का निकला तो ऑक्सीजन के ऊपर में लेके जाता हूँ। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे, 5 जून को सब लोगों ने चिल्लाए, सब लोग बोले, हर किसी के हाथ में झंडा था, हर किसी के हाथ में पौधा लगाने के लिए ये था। शायद वो क्या मीडिया में दिखने के लिए है कि क्या है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं आया, मेरे पूरे चैनल पे आपने देखा था भैया के। हमें वो काम करना पड़ेगा जो किसी को दिखाना नहीं है, सही बात बोल रहा हूँ। हमें वो काम करना है जो किसी को दिखाना नहीं है। वो काम जब बन जाए, वो काम जब बन जाए उस दिन उसको दिखाना है। जैसे आज के 1 साल पहले अगर बैम्बू लगाने से पहले अगर आप लोगों को लेकर यहाँ बैठते कि मुझे यहाँ 5 एकड़ बैम्बू लगाना है, तो शायद वहाँ बैम्बू नहीं लगता। जो काम करना है वो करने के बाद दिखाना है, तो लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये कर दिया। पूरे भारत की मैं बात करूँ तो हर किसी ने ज्योग्राफी पढ़ा है। आज के 25 साल भी वही था कि 71% पानी, बराबर, और 29% जमीन, पता है। लेकिन 71% जो वाटर है, उसमें से हमें पीने लायक पानी कितना है, किसको पता है? पूरे वर्ल्ड में 71% पानी है। ऊपर से आकाशगंगा से हम लोग अगर पृथ्वी को देखें तो नीले कलर की दिखती है, शायद इसलिए दिखती है कि वो पानी से भरी हुई है। लेकिन क्या ये 71% में हम जो पानी पीते हैं, जो अच्छा TDS वाला 550 से 500 या फिर 450 पाउडर में वो पीछे लेके जाऊँगा, बराबर, वो कितनी मात्रा में है, कोई बता सकता है? किसी के पास आंसर नहीं और किसी ने सोचा भी नहीं, बराबर। मात्र 3%। कितना? पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र 3% पानी है जो हम लोग पी सकते हैं। ये कितने दिन रहेगा अपने पास? किसी ने सोचा ये चीज़ों को? हमें तो मिल रहा है, ये तो है, नेचुरल स्रोत है। अपने भारत में तमिलनाडु में चेन्नई एकमात्र ऐसा शहर है, आज की तरफ 20-50 मेरे हिसाब से 15 दिन पहले लेख आया है, चेन्नई में मीठा पानी किलो से बिक रहा है। चेन्नई पता है किसको? वहाँ नॉर्मल पानी जो मीठा है, ये पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। पेट्रोल के जैसे जब पानी खरीदने जाओगे तब हमें समझ में आएगा कि पानी की अहमियत क्या है। लोग तो 20 रुपये लीटर बेच ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर, 20 रुपये लीटर बेचे ही जा रहा है।
लेकिन हर घर में हम लोग जब खाने के लिए भी पानी अगर देना पड़ेगा, उस दिन अगर हमें समझ में आए उस दिन बहुत देर हो गई होगी। आज की डेट में मैं बात करूं कि ऑक्सीजन की मात्रा ये पानी की वजह से ही है। हम जो O2 ले रहे हैं ऑक्सीजन, ये पानी से ही मिल रहा है। किसी को पता है ये कैसे मिल रहा है? कई लोग बोलते हैं हवा से मिलता है, पौधों से मिल जाता है, यही है ना? तो मिलता कैसे है, किसको पता है? इतना गहराई तक किसी ने नहीं सोचा। मिल रहा है, हम लोग ले रहे हैं। कोविड में जिनको शुद्धतम ऑक्सीजन लगा दिया वो भी खत्म हो गए, जिनको नहीं लगाया वो भी खत्म हो गए। मतलब ऑक्सीजन की लेवल भी इतनी गड़बड़ हो गई। चलो फिर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और हमने जो समझा है शायद किताबों में भी कई जगह भी लिखा नहीं है ये चीज़, सुनते रह जाओ। पौधा जब अपनी जड़ों से पानी को अपने बॉडी में लेता है और पत्तों तक जब लेकर जाता है, जब सनलाइट उसके ऊपर गिरता है तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण जिसे बोलते हैं, बराबर? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिस दिन होगी, जिस समय होती है, उस समय पानी का रेशो किसको पता है? H2O। तो उसमें से जब फोटोसिंथेसिस होता है, सूर्य किरण की रोशनी उसके ऊपर, जो अल्ट्रावायलेट किरणें उसके ऊपर जब गिरती है तो O2 ओपन होता है, तो हाइड्रोजन ओपन होता है। तो हाइड्रोजन या हाइड्रस जो होता है ये पौधा अपने बॉडी में लेता है, जो आपको हवा देता है। और O2 जो ओपन होता है वो हम लोग लेते हैं। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पानी से मिलता है। तो इसलिए हमें पानी को बचा के रखना पड़ेगा। पौधे देते हैं, लेकिन मुझे बताओ जहाँ पानी नहीं वहाँ पौधा है क्या? तो हमें पानी लाना पड़ेगा, और पानी लाने के बाद पौधे लगाओगे तो पौधे हमें ऑक्सीजन देंगे। कई लोग बोलते हैं पौधे लगाओ, पौधे लगाओ। पौधे लगे दक्षिण अफ्रीका में। आज में मैं बात करूँ, पूरे वर्ल्ड में 40% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है दक्षिण अफ्रीका का जंगल। किसी को पता है? नाइल नदी के बाजू में बड़े बड़े दक्षिण अफ्रीका के जंगल, वहाँ से जो ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है ये पूरी पृथ्वी के ऊपर जो घूमता है हमारे शिलावरण में, वो हम लोग अपने करते हैं, इसलिए हमारे पास ऑक्सीजन है। पिछली बार 1 साल पहले जब वहाँ पे जंगल में आग लगी थी तो हमें भी महसूस हो रहा था कि हमें भूखमरे जैसा प्रतीत हो रहा था। एक व्यक्ति को जीवंत रहने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 100 पौधे की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ, है ना? एक व्यक्ति को जीवंत रहने के लिए, O2 लेने के लिए, उसकी गाड़ी जो चल रही है उससे जो कार्बन निकल रहा है, घर में जो फ्रिज चल रहा है, घर में जो टीवी चल रही है, उसके कार्बन को शक करने के लिए आपको 100 पौधे की आवश्यकता एक व्यक्ति को है। क्या हमने 100 पौधे लगाए हैं? कई किसानों को तो मैंने ऐसे देखा है कि उनके खेत में पेड़ के ऊपर जो दादाजी ने लगाए थे वो भी खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि उसके नीचे ईंट अच्छी नहीं आती। भाई सारी कुश्तियाँ मेड़ पे ही खेल लेता है, बीच अंदर में कुछ नहीं होता। सारी कुश्तियाँ मेड़ पर है, अंदर भले ही कुछ नहीं पके, उसका मेड़ की तरफ बहुत ध्यान है। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा, बराबर? तो ऑक्सीजन भी मिलता है। ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में देने वाला सबसे बेहतरीन पौधा है वो बैम्बू है। कार्बन को शक करता है। दूसरी बात, आपको लकड़ी प्रोवाइड करवाता है। हर समय जितनी बार आप मांगोगे उतनी बार आपको लकड़ी देगा और नए सिरे से देगा। ऐसा कोई पौधा नहीं है। अभी इनके खेत में इन्होंने पिछले बार 4000 पौधे लगाए थे। आज की डेट में मैं बोलूँ कि एक पौधे के पास कितने सूट हैं? 7-8 सूट है। मतलब इनके खेत में 8 का रेशो भी पकड़े तो 32,000 पौधे इनके खेत में लगे हुए हैं, जो पत्ते से नीचे से पानी भी ले रहे हैं, ऊपर से कार्बन भी ले रहे हैं और आपको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पे अलग सा महसूस हो रहा होगा। अभी तो वातावरण अलग हो गया है। अगर आप यही मई के महीने में यहाँ आकर बैठोगे तो यहाँ पे कुछ अलग प्रतीत होगा आपको।
और कुछ पूछना है? क्लस्टर में आप लोगों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के खेडूत को आप ही पहचानते हो कौन खेडूत कितना लगा सकता है। 100 एकड़ का एक क्लस्टर बना के आगे बढ़ो। आपके गुजरात गवर्नमेंट को प्रपोजल दो, हम है आपके साथ में। हमारे क्या आवश्यकता आपको पड़ रही है वहाँ पे, हम लोग आपको देने के लिए। ये तो कितना भी लगाओ, बैम्बू मैं कितना बना के अप्लाई करता है। आपके पास कितने खेडूत है? 100 है, 200 है, 50 है, 10 है, उस हिसाब से आप काम करो। देखिए, अकेला इंसान भी हो उसने 4000 पौधे लगा दे, जिसको रुकना नहीं है वो रुकेगा नहीं, बराबर। आपके अभी ये रेशो आगे बढ़ेगा, ऐसे ऊपर बढ़ेगा। आप लोगों को अभी समझाना चाहोगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज के मीटिंग के बाद जो जिनके कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे काफ़ी सारे, बराबर। तो कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए तो फिर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। भले ही जिसके पास 10 एकड़ खेती है वो 1 एकड़ में लगाए, बाकी उसके 9 एकड़ करते रहे, जैसा है वैसा। मानो एक या दो ही अभी मेरी काका ने की, इसके लिए कुछ आपका हेल्प कटिंग के लिए तो इनको बोला है मैंने, जैसे आज बोला आपको कि एक क्लस्टर अगर बनता है 100 एकड़ का, तो यहाँ पे एक वाइट पैरेट का लगवा देना। वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो 100 एकड़ जब बनेगा तब बनेगा। लेकिन अभी जो सर्वर अभी काका के लिए एक ही है, जैसे दूसरे साल के बाद में अपना खुद का एक क्लस्टर बना हुआ है। अपन किसान के खेत से ले रहे हैं 1.5 रुपये किलो, बी किसान खरीद रहा है, बराबर। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि किसान को पैसे कम मिल रहे हैं और वाहन का जो जिसका ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? जैसे पिछली बार केले के रेट थे 3 रुपये किलो और उसके ऊपर 7 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहा था वहाँ भेजने के लिए, वैसे भी बैम्बू में भी हो रहा है 1 kg। बराबर। जैसे यहाँ अगर बाम्बू है और यहाँ से मोरबे में अगर भेजना है तो कितना वहन लगेगा? आज की डेट में काका को अगर बैम्बू बेचना है तो लाठियाँ कट करके ग्रेडिंग करके फिर लोकल टिम्बर मार्केट में यहाँ से देना है। तो टिम्बर मार्केट में भी मैंने बोला कि 40 रुपये में लाठी चली जाती है। कम से कम छोटी से छोटी लाठी जो टमाटर को लगाते हैं, बच्चे थी नीचे करो, में एक लाठी आती है, बच्चे थी नीचे नीचे 9 फुट इनकी, कट कर दियो। 150 उसके बाद में बीच वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, अलग अलग ग्रेडिंग। लेकिन इतना दिमाग नहीं लड़ाना है हमें। तो 4 साल के बाद अपने को इसके ऊपर बड़ा बल्ब में काम मिलेगा। और होता क्या है, जितनी बड़ी गाड़ी हम लोग देंगे 17 टन 20 टन, उतना वो चार्जेस कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। अगर पता चला कि आज 10 टन ही माल है तो उसको वो ज़्यादा चार्जेस लगेगा। 17 टन अगर रहा है तो वो रेशो कम लग जाएगा। जब बनते लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोई भी खेल नया नया शुरुआत करे उसके लिए वो जरूरी है। जब उसके लायक वो तो फंस जाएगा तो आगे कोई नहीं करेगा। निकालेंगे उनको। और ध्यान में ये रखिए कि आज के डेट में बैम्बू का जो मार्केट है, जैसे आप आसाम में जिसको पूछेंगे ना तो बैम्बू लगाने के लिए नहीं मिलेगा, तो उसको पता है इसने वहाँ लगा दिया तो मेरी गाड़ी तो वही जा रही है, मेरे से बैम्बू नहीं लेगा। आज आपके गुजरात में हर दिन 10 ट्रक आते हैं, खाली वो पतंग की काड़ियाँ बनाने वाले तुलडा के, वो आसाम से मंगाते हैं। क्या आसाम के किसान उनको बैम्बू की दे रहे हैं? लेकिन ये कितने में ला रहे हैं उनके वहाँ से? उनको ट्रांसपोर्ट कितना महंगा गिर रहा होगा। अगर यही टुकड़ा आपने लगा के उनको यहाँ पे दिया तो क्या वो रेट भी देंगे आपको? देंगे 100 देंगे। इसके लिए सोचना चाहिए। पहले तो किसान को ये समझना पड़ेगा कि मैं मेरे 2 एकड़ में मैं कौन सा बैम्बू लगाऊँ, मुझे किस वे में जाना है। जैसे टुकड़ा लगाना है तो फर्नीचर बन जाता है, आपकी पतंग की काड़ी बन जाती है, और बायोमास कार्बन में तो फर्नीचर है जो पीस के जाने वाला है उसमें बराबर। तो फालतू वाइट पहले उसके ऊपर ही मुझे जाना है या फिर
बल्क में मुझे बॉम्बे या जहाँ बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं वहाँ पे मुझे बेचना है तो बल्क पॉलीमार हुआ, एस्पर, अगरबत्ती की फर्नीचर या होम टाउन जो बनाते हैं उसके लिए कई सारे नंबर मेरे पास जबलपुर में एक बंदा है जिसमें वाइट पैड की हेलिक फैक्ट्री 20 दिन से पीछे लगा हुआ है। मैं उसको अगर मूल के ऊपर मुंडा समझे तो 10 गाड़ी भरती है तो वो पोपट मांगेगा मुझे बता कि 10 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन मुझे लगने वाला सही बात है कि नहीं। और कटिंग के लिए वहाँ मजबूत है।